السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ٹچڑی بڑکے شروع ہو گیا پروگرام۔ بھائی شروع ہو گئے تو بیٹا آپ بیٹھو۔ آپ بیٹھے، ٹچڑی بڑکے شروع ہو گیا۔ آپ افسر ہیں، آپ بیٹھیں۔ آپ افسر ہیں، آپ چھوڑیں، گولی مارے اس افسر کو، آپ بیٹھے۔ ادھر بیٹھ لینے دیں، ہیں کون؟ یہ ٹیلر ماسٹر ہے میرے محلے کے۔ اچھا اچھا، نماز صاحب ادھر آئے، تشریف رکھیں آپ۔ ادھر ہی بٹھا دیں ان کو۔ وہ بھی کرسی ہے بابا، بیٹھ لینے دیں۔ میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ کمال بات ہے، مجھے اپنے سے کرنی ہے نا۔ او سر مجھے جا کے اپنے پھٹے پہ بیٹھنے دے، آپ کرسی پہ بٹھا رہے ایک منٹ، تو یہ ٹیلر ماسٹر کو کیوں ساتھ لے ہیں؟ آج کل ہمارے یہی افسر ہیں جی۔ کیوں؟ خیر ہے۔ ورڈی ملی ہے جی ہمیں کوئی 2-2.5 سال کے بعد۔ اچھا، مبارک ہو۔ خیر مبارک، اس کا تو ہم نے گھر میں جشن منایا ہے۔ اچھا، میری بیگم نے، آپ کی پڑجائی نے گڑ والے چاول پکائے تھے کہ ورڈی ملی ہے میرے خاوند کو۔ اچھا محلے میں بانٹے ہیں۔ اچھا، تو ورڈی وہ ملی ہے نا جو جی، وہ کپڑا دے دیا ہمیں گورنمنٹ نے۔ ہاں جی، انسلا کپڑا دیا، انہوں نے کہا سلائیں خود اس کو۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا پہلے۔ پتہ نہیں، اب انہوں نے دے دیا، کہتے ہیں کہ یہ خود سلائیں جا کے۔ تو سلانے کے لیے ان کے پاس گیا ہوں تو یہ پیسے اتنے مانگ رہے ہیں، تنہائیں ہماری بڑی نہیں ہے، بیڑا گڑک ہو گئے، سبزی کے پیسے نہیں بیٹھے، تو اس کو کدھر سے ہم سلا لیں؟ تو ان کی منٹیں کر رہا ہوں کہ آپ سیدھے، آپ کی مہربانی، آپ کو میں مینج کر لوں گا۔ بیٹا میرے بچے مینج کر لوں گا کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا آپ سیدھے مجھے ورڈی تو آپ کو 6 مہینے کے لیے ٹریفک کے اشارے فری کر دینا۔ بہت اچھے نا۔ اشارے کیا مطلب فری کر دیں گے؟ اگر ٹریفک کا اشارہ کاٹ بھی لیں گے تو چلان نہیں نہ کروں گا۔ میرے پاس کون سی اس سے زیادہ اور میں کیا اب ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا؟ اور پائی جی میرے بچے مٹی کھاتے ہیں، کوئی پیسے دو گے تو ان کے پیٹ میں روٹی ڈالوں گا نا۔ نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 مہینے کے لیے آپ کا چلان نہیں کروں گا، چلان کے کوئی تھوڑے پیسے تو نہیں ہوتے۔ بہت اچھے، پیدل کا کون سا چلان ہوتا ہے؟ یار جتنی تنہائیں، اب میں ایک دیکھے ذرا، اتنی منٹیں کر رہا ہوں، ان کی 2 دن ہو گئے ہیں تو سونے نہیں رہے۔ یار نہیں پیسے ہیں تو نہ سلواؤ یار، ایسے لے پیڑ لو، ایسے افسری کی افسری، ساڑی کی ساڑی۔ ہماری لیڈیز پولیس نہیں، میں مرد ہوں تو میں ساری پہن کے ادھر پھیٹا رہا ہوں۔ ہاتھوں گے تمہارے والی، میں ادھر وارڈن لگاؤں ہوں یا فلم سٹار شبنم لگاؤں ہوں؟ یار اتنے برے حالات ہیں تمہارے۔ یہ سیدھا کپڑا دے دیا، 3 ورڈیاں دی تھی ہمیں، 3 ورڈیاں۔ وہ ورڈیاں اس طرح کا کپڑا تھا کہ اس بھائی صاحب نے کہہ دیا تو یہ تو سلائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ پھر واپس جا کے دکاندار جس سے انہوں نے کہا تھا کہ اس دکان سے جا کے ساڑھے وارڈن کپڑا لے لے، اس دکاندار کے ساتھ جا کے تو سودا کیا، میں نے کہا 3 سوٹوں کی بجائے 1 دے دو، یہ کپڑا اچھا دے دو۔ پھر سوٹ لے کے تو ان کے پاس گیا ہوں تو کہتے ہیں جی سین دیتا ہوں 2000 روپیہ لگے گا۔ میں نے کہا 2000 کہاں سے، تنہا اتنی تھوڑی ہماری اس طرح نہ کریں، منٹیں کی ہیں کہ سیدھو تمہاری مہربانی تو کہتے ہیں۔ بابا آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، جسہ تو بڑا ہے نا، اس کے حساب سے تو پیسے بنتے تو ہیں۔ جسا زیادہ تو پھر تو اور زیادہ خرچہ ہوتا ہوگا میرا۔ تو کہتے ہیں کم 1200 پہ آئے تو 1200 روپے سے زیادہ کم نہیں کر رہا، تو میں نے کہا یار 1200 کا کچھ تو کم کرو، مفت سی دو۔ بہت اچھے یار، 1200 کا تو کم یہی ہوتا ہے نا۔ اور بھائی اپنا قد دیکھو، 1200 روپے بھی تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ یار سیدھو یار، قوم کی خدمت کرتے ہیں ادھر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں یار، تم یار تم سیدھو یہ پکڑو، یہ لو۔ اور نام کھڑا کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کا پینڈو درجی اگر 1200 روپیہ مانگ رہا ہے تو وہ پینٹ کوٹ والا درجی تو کہے گا کہ میں نے 4000 سے کم نہیں لینا۔ باؤ جی بات ختم کروائے، میں چلتی دکان چھوڑ کے آیا ہوں۔ کڑی دکان ہے، درخت تھلے مشین رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہمارے علاقے کا ہے جنید صاحب، ادھر درخت کے نیچے پھٹا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، سویرے 2-3 گھنٹے اسی پھٹے پر کسائی کام کرتا ہے، وہ جب گوشت ختم کر دیتا ہے تو یہ آ کے مشین رکھ لیتا ہے۔ شام کو 7 بجے یہ اپنی مشین اٹھا کے لے جاتا ہے تو ادھر ایک بندہ وڈی کلیجی پھون کے بیچ رہا ہوتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ اٹھ کے جاتا ہے تو اسی پھٹے پہ چڑسی سوئے ہوتے ہیں۔ ایک پھٹے کو 10 جنے استعمال کر رہے ہیں تو مہنگائی دیکھو اس نے کس طرح کی ہوئی۔ باؤ جی بات ختم کرائے، آپ کے منہ کو میں 1150 روپے لے لوں گا بس۔ واہ جی واہ، 50 روپے پٹر تیرا چلان ہوئے گا۔ یار کر لے میرے چپلوں کا چلان، کر لے جڑی موٹر سائیکل کا کروں گا، اور میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے ہی نہیں۔ تو جڑی ویگن پہ بیٹھ کے آٹو، اس ویگن کا بھی چلان ہوگا۔ دکان کیسے کھولو گے پھر جا کے؟ اور بھائی میں تو پیدل آتا ہوں۔ اتنے ایزی نہ لو مجھے، جتنا ہم لوگ اکے ہوئے ہیں نا، ہم نے کو پیڈل کا بھی چلان نکال لینا۔
बाजी नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ ले लो, चलो तुम 500 रुपया ले लो, 100 रुपया महीना तुम्हें दे दिया करूंगा, शर्म नहीं आती। 500 का भी 100 रुपया महीना, मैंने कमेटी डाली हुई है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि सिलाई भी नहीं दी। ये कितने वार्डन होंगे, कितनी सिलाई बनती होगी इतने वार्डन की यूनिफॉर्म की। आपको तो यकीन नहीं आ रहा, हमारे घर में तो खाने पीने का सामान भी नहीं आ रहा। इतनी बुरी हालत इन्होंने कर दिया हमारे वार्डनों के महकमे की। आप बिलीव करें जुनैद साहब, ये जितने बड़े बड़े अफसर बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियों पे बैठ कर घूमते हैं ना, एक दिन ये सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें तो उसके पेट्रोल की वजह से सारे वार्डनों की वर्दी सिल सकती है नहीं। मगर खुद अपनी याचन छोटे में खुला कपड़ा दिखा दे दिया, खुला कपड़ा दे दिया। दोस्ती बना लो यार इसकी। यार इस तरह तो डोटी पहन के भी तो बंदा क्या इस तरह वार्डन किस तरह खड़ा होगा, इस तरह ऐसे। अगर एक दफा मैंने ये भी ट्राई किया कि अगर इस तरह कर लूं तो फिर अगर चलाऊं ट्रैफिक तो फिर कैसा लगेगा। तो मुझे मल्ले के लड़के जुगटे करनी शुरू हो गए, कहते हैं ये क्या बने हुए हो तुम, तो इंडिया के वजीर खारजा लग रहे हो। मैं कहा शाबाश है, जुगट भी ओडी करो जिन्हें गुर्दे फेल हो गए। यार वैसे लग तो सही रहा वैसे है, ऐना ना बाडल लग रहा है, थल्ले वार लग रहे देखो जुगटा इतने शुरू हो गए, जिन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो की हाल है। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप यूं एक दफा यूं ट्रैफिक कंट्रोल करके हो अल्लाह वाले आदि जुगनी जी, हो मौला वाले आदि जुगनी जी, ओए वंगा चढ़ा लो कुड़ियो कुड़ियो कुड़ियो, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो। मैं डर जी हाँ तो मैनू तो इंग्लैंड वाली ढानी ताज का पढ़ा लग रहे। हुण तेरा चलान होवे जुगटा कर दियो ना, तुहानू मैं दसांगा। नहीं। हुण जरा वेखना सही, सारा गुस्सा हुण अफसरां दा तुहाडे ते निकले। नहीं साहब एक मिनट जरा, ये कपड़ा इधर दिखाएं। कपड़ा इधर दिखा, टल्ले पे करना सीधे सीधे ते सिर ते चढ़ जांदे। यार इसकी तो सिर्फ पैंट बनेगी, पैंट नहीं बनेगी, शर्ट भी कटनी है ते नाल मेरे निक्के मुंडे दा स्कूल दा यूनीफॉर्म भी कटना है। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਲਵਾਓ, ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਓ। ਸੁਪਰਮੈਨ यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾ ਖੜਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਟੰਡਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ। दो यार इधर ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਇਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾ, ਚੌਂਕ ਖਲੋਵੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਿਆ। बस पुत्र रहने दे, बदतमीजी नहीं करी। ज्यादा शौकी हो गए। और सर कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा कपड़ा कितना है जनाब? 5 गज जी पूरा। लो 5 गज च मेरा मसा सूट बनता है। तेनू वार्डन लवा नहीं, मैं डिजाइन दे देना। आईजी साहब नु कहने बच्चियां ने वार्डन रख लो। लो जनाब मेरा एक मशवरा है तुहानू। की मशवरा जी तुहाडा? ओ वेले कवेले बूहा खुला रह जाता है, इनू घर दा पर्दा बना लो। मेरा मतलब है तुसी ते बिस्त हो नहीं डे हो, घर दा पर्दा रह जाएगा। तेनू मैं जब फिर फड़ के ते अंदर दिता ना ते तेनू समझ लग जाएगी। शर्म या नहीं रह गई होई तुहानू। एक मिनट ठहरो यार, 1 मिनट। दर्जी साहब फड़ जरा। देखो जरा एक सूट सुहाने ते थोड़ा कपड़ा ये क्या करने लगे? ए देखो जी, लो जी अल्लाह वाले हो, वार्डन की वर्दी सवानी है, हसबे तफीक जो तफीक है जे चादर च पाई जाओ। लो जी बाबू जनेत जी, आईजी दे नाम दा 100 रुपए तो घट नहीं जे पाउंदा। तुहानू मैं दसना वा पुੱਟੜ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। मैं कीता की है? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। मेरी कैंची। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ में ਕੁੱਟਣਾ। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके वाह,
अखीर पंजाब में भी मेयर शेर बानी गए। हाँ जी। मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक सर। यानी बाकी सवा को साल रह जाना है इस हुकूमत का, और सवा साल पार चुकेगी ये हुकूमत इन मेयरों का। सर इस पे ढोल बनता है, ये क्या बनता है? ढोल बजाने वाली क्या बात? चलो यार ना ढोल बजाओ, मेज बजा लो, हल्का सा बजा दो कोई बात। मैं इन इलेक्शंस के बाद 2-3 जुमले अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा है कि तुम फौरन फतवा जारी कर दोगे कि तुम तो हो ही यासियत ज़दा, सड़े हुए बंदे हो, हर बात में मायूसी का पहलू देखते ये हो। तो मुस्तकिल तुम्हारे साथ लेवल है, वैसे तुम बात करो इस पे। नहीं, मेरी बात का जवाब दो कि जब भी इंतखाबात होते हैं, खा वो बल्दियाती हो, उसके बाद बल्दियाती सरबराहान के इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, कभी हमने पीछे मुड़ के देखा है कि हम इन इंतखाबात के नतीजे में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ गए, हमारा कोई सियासी निज़ाम, कोई उसकी कोई शक्ल बनती हुई नजर आ रही है? मुझे तो कभी भी नजर नहीं। आज तुम देख लो ना, कभी नहीं नो। अच्छा आज तुम मतलब मुंह पे जिस तरह की इसकी मुस्कुराहट होती है, लगता है कहेगा कि फलूदा मंगा लो आज, और नाल इंज करो कि खीर भी मंगा लो। और यार कल इस तरह ना करिए, शो तो पहले थे, थोड़ी सी पिकनिक मनाइए। नहीं, फलूदा और खीर मैं जरूर मंगवाऊं अगर मैं ये महसूस करूं कि हमने कोई अपने सियासी, जिसको बलूगत कहते हैं, उसकी तरफ कोई सफर का पहला कदम भी उठा। हर इलेक्शन के बाद यही होता है। तुम आज देख लो, आज के इलेक्शंस देखो जो पंजाब में हुए हैं, बल्दियाती इदारों के सरबराहान वही किसी का चचा, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का साला, किसी का बहनोई, सारे वही जीते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे यहाँ ये जो बल्दियाती इदारे कहा जाता है नर्सरी होते हैं, ये बिल्कुल ये नर्सरी क्यों नहीं बन पा रहे? ये जो हमारे यहाँ ऊपर वाली सतह पे, यानी कौमी सियासत में या सूबाई सतह पे जो हमें मरूसियत का राज नजर आता है ना, कि वजीर आजम का भांजा, भतीजा, बेटी, इसी तरह हर सियासी जमात में वही आगे से नजर आते हैं, मजहबी जमातों में भी वही नजर आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ ये जो धड़े हैं ना, जिन्होंने आज इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने बल्दियाती सरबराहों का इलेक्शन लड़ा है, ये जो मुकामी तहसील या जिले की सतह पे हमें सियासी धड़े नजर आते हैं ना, सबसे ज्यादा मरूसियत इन सियासी धड़ों में। जब तक इन सियासी धड़ों में से मरूसियत खत्म नहीं ना होती, ऊपर की सियासत में भी ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो हम आदी हो चुके हैं, हम आदी हो चुके हैं। हर तरफ गाना यही सियासतदान गा रहे हैं, रिश्तेदारां विच सारियां सीटां वंड के आवांगी हवा, गर्म हवा बन के। अगर आज के इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि एक अंदाजे के मुताबिक 75 से 80% वही बल्दियाती सरबराह बने हैं जिनके मामे, चाचे, बहनोई या रिश्तेदार जो हैं वो पहले से MNA MPA की सीटों पे काबिज हैं। अब वाकई हर इलेक्शन में वही रिश्तेदारियां और जात बरादरियां ही घुसी हुई हैं। खुल नहीं रही सियासत हमारी, जब मतलब इन शिकंजों से आजाद ना हाँ, इन शिकंजे, ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ है, इन शिकंजों से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा शिकंजा जो है ना, ये निचली सतह पर धड़ेबंदी है। और जब एक सियासी कारकुन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो यही जो सियासी लीडर हैं, इन्हीं के भांजे भतीजे ऊपर जाते 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 कौमी सियासत पे काबिज हो जाते हैं। सियासी कारकुन बेचारा नीचे की सतह पे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता लगाता मर जाता है। तुम देखो ना, ये कौन सी सियासी धड़ेबंदी है? कोई बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हम दोस्तों का ग्रुप है। भाई दोस्तों का ग्रुप है, तुम खुद बैठे हुए हो, पिछले 20 साल से तुम ही MNA बन रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई MPA बन रहा है, तुम्हारा भांजा जो है वो जिला कौंसिल का चेयरमैन बन रहा है। जो भी सियासी ओहदा कहीं पे भी क्रिएट होता है, कहीं पे भी मौका मिलता है, तुम किसी कारकुन को कंसिडर ही नहीं करते। और जो आगे सारे बैठे होते हैं सियासी कारकुन, नहीं जो सब आपको नहीं कर रहा। भाजी बनी अटक दे रौला पान लग। चौधरी साहब की भांजी ने हराया किसको है अटक में? चौधरी निसार अली खान के भांजे को। यहीं से ये जो हश्तपा है, इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। जीतने वाले भांजियां छड़ दियो ना, जेडे हारे ने उन्हां दा जिक्र करो। चौधरी साहब जो हारे हैं वो भी इसी पॉलिटिकल एलीट से हैं, जो जीते हैं वो भी इसी एलीट से। यार जी सही कहते तो बंदे ही सड़े हैं। जो सब
میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب مقامی سطح پہ سیاسی دھڑا تشکیل پاتا ہے تو ایک عام کارکن کا بھی تو یہ حق ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو پیش کر سکے, اس کا نام بھی کنسیڈر ہو کسی سیاسی عہدے کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ سارے آگے جی حضوریے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل کارکن نہیں ہوتے, وہ پھر سیاسی طور پہ کمین بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو ایک لیڈر ہمیشہ اپنا ذاتی ملازم سمجھتا ہے, خدمتگار سمجھتا ہے. بندہ بہت بولتا ہے عام کارکن کا بھی نام کنسیڈر ہوتا ہے, ووٹ لسٹاں کڈو وہ نام نہیں لکھے ہوتے سارے. ووٹ دینے کے لیے, وہ نعرے لگانے کے لیے, وہ پوسٹر لگانے کے لیے, بینر باندھنے کے لیے ہے. جدو ہی جیت جانے تو پھر انہوں ریڑی بھی دلان دینے. بس وہ بیچارہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات پورا کرتا ہے. پھر یہ دھڑا کون سا ہوا؟ دھڑا تو اسی ایک ایم این اے کا ہے. ہر ضلع میں ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, ایک سیاسی جو خان وادہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اور آگے اس کے سارے جو ہے خدمتگار بیٹھے ہوئے. دھڑا کہاں سے آ گیا؟ وہ آزاد امیدوار نہیں جیتے 5-6 جو آزاد امیدوار جیتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے سیاسی دھڑے ہیں نا, ایک یا دو بندوں کے گرد گھومتے ہیں. ارے تو گھومی جاندے انہوں نے کولوں تسی گانا گائی جو کوکلاشی پاکی جو میرا آدھائی جڑا کے مجھے کب تک گھومتے رہیں گے. اور ان جو سیاسی دھڑوں میں اگر کوئی بندہ کہہ دے اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے تو کہہ دیتے ہیں یار یہ تو احسان فراموش ہے, یہ کون ہوتا ہے ہمارے مقابلے پہ آنے والا, اس کو تو ہم نے فلاں فائدہ پہنچایا تھا, فلاں فائدہ پہنچایا تھا, آج یہ خود ایم این اے ایم پی اے بننا چاہتا ہے, یہ خود چیئرمین بننا چاہتا ہے, پھر اس کا بھی حق ہے. یہ بزرگ کہہ گئے نا جڑا اگے پیچھے ویکھے وہ شامت آئی, کیونکہ اگے پیچھے ویکھے وہ پھر شامت ہی ہوندی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے رویے اور آج ہونے والے بلدیاتی اداروں کے سربراہان کے انتخاب پر محترم جناب دانیال عزیز صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے سیدھا ادھر ہی چلتے ہیں. میں گزارش کرنی چاہتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. بھائی صاحب ذرا خاموشی اختیار کیجیے. میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ بڑے جذباتی ہیں. ساری قوم بڑی خوش ہے کہ نون لیگ ایک دفعہ پھر سامنے آئی ہے اور کھل کے سامنے آئی ہے, اور آج پوری عوام پہ واضح ہو گیا ہے کہ ہر طرف شیر ہی دھاڑ رہا ہے. وہ جو ڈرنے والے تھے وہ دوڑ گئے ہیں. دانیال صاحب جان کے امان پاؤں تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجیے. آپ یہ پریس کانفرنس پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ریپرزینٹ اب نون لیگ کو کر رہے ہیں, حکومت کو نہیں کر رہے. نہیں تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت نون لیگ کی ہے. میں کس کا ہوں؟ آپ نون لیگ کے ہیں. تو پھر یہ پریس کانفرنس میں کیوں نہیں؟ آپ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. اچھا جی چلو میز چوک لو جی, اتنے پلے لا دی ہو جی, میں ادھر پلے بیچ لیں گا جی. ٹھیک ہے جی, پھر خوش ہو. یہ کیا جسٹیفیکیشن؟ جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے اور میں نون لیگ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں, اور میں صرف آپ کو یہ مبارک دینے کے لیے آج آیا ہوں. میرے جذبات کچھ اور تھے, گفتگو میری کچھ اور تھی آج کی, مگر آج کی یہ میئر کے الیکشن کی جیت نے, نون لیگ کی اس طرح کی جیت نے میرے سارے جذبات پہ وہ اوس ڈال دی ہے. وہ اوس سمجھتے ہیں نا؟ اوس کیا ہوتا جی؟ تریل جنہوں پنجابی تریل کہتے ہیں. تریل کیا ہوتا جی؟ میں تو چلو ہے وہ شکرگڑھ دا, مگر تمہیں شکلوں کوئی بلیو ایریے دا نہیں لگتا. آپ کو تریل کا نہیں پتا؟ وہ جو صبح اوس پڑتی ہے اسے تریل پنجابی میں. صاحب اوس کا مطلب سارے سمجھتے ہوں گے. ہاں جی, اسے شبنم بھی کہتے ہیں. میں شبنم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی سکینڈل نہ بن جائے. میں یہ مبارکباد ساری قوم کو دیتا ہوں, بلکہ میں آپ صحافی بھائیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اس نون لیگ کی شاندار جیت پہ اگر آپ ڈانس کا ایک سٹیپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سر پیسے ملیں گے؟ پیسے تو بغیر بھی کسی چینل تے نچ لیا کر. ویسے تو دربار دی چادر ویکھ کے نچن لگ پینا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شاندار جیت جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 33 میں سے 25 سیٹیں نون لیگ نے لی ہیں. 25 کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے سلور جوبلی کر لی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فلم سٹار محمد علی کی جب فلم 25 ہفتے چلتی تھی تو سارے اخباروں والے اسے سپر سٹار لکھا کرتے تھے. اس لیے اب آپ کو بھی مہربانی کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو سپر سٹار لکھا کریں. اچھا دانیال صاحب, چودھری نثار علی خان اور نون لیگ کے تعلقات آج کل جس نہج پہ ہیں, اس تناظر میں دیکھا جائے تو نون لیگ میں سے صرف
चौधरी निसार के भांजे का हार जाना मानी खेज नहीं है? नहीं, मानी खेस क्या मतलब? आप लोगों को वैसे ही शक करने की आदत पड़ गई है, और आप तो खास तौर पे वैसे ही हम पे तनकीद करते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੂਦ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਬਈ ਤੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੁਆਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ। तान्या साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, जुगते करने आए हैं? जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करन आया, मगर विच जुगता ना करा तो चैनल वाले पैसे नहीं जे देंगे। मैं इतने को नजीर नाजी नहीं लगा आया। तो बात कर रहा था मैं नून लीग की जीत की। देखिए 33 सीटों में से 25 सीटें एक पार्टी के लिए ले जाना, ये एक बहुत बड़ी शानदार जीत है। ये पीटीआई वाले कहते हैं कि सूबे में जिसकी हुकूमत हो उसी की जीत होती है। भाई खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपने क्यों इतनी कम सीटें ली है? इसका मतलब यह है कि लोग नून लीग की तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा है कि ये फैसलाबाद में बहुत सारे पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मिल गए। वाह। और राणे सनाउल्ला ने इंज मिलाए ने जिवें वड्डी चमची नाल दही चेसम गोल नहीं मिलाई दा। तान्या साहब उस दिन असेंबली में जो हंगामा रही हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर आप पर एक फप्ती कस दी है, तो यार इसको तो चुप करवाओ, इसको वजारत ले दो किसी तरह। क्या कस दी है जी? एक फप्ती कसी है आप पे। क्या कस दी है? फप्ती फप्ती। ये भक्ति क्या होती है जी? फप्ती उर्दू का लफ्ज है। मैं शकरगढ़ों जीते है जी, मैं लखनऊ तो नहीं जीते है। जरा इस उर्दू च थोड़ा जिहा पानी पा के इनू पतला करो। ये पंजाबी ते सुनिया कि इस मुंडे नू जीन जैकेट बड़ी फबदी है, ये उर्दू चो फबती कित्थों आ गया जी? वो भी कसी। ਉਹ ਫੱਤੀ ਜੀ ਫਿਕਰਾ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ये तो शाह महमूद साहब भी वजारत वास्ते ही रौला पाते रहे हो कि लंडे दी जर्सियां बेचने वास्ते रौला पाते रहे। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। वो भी इसीलिए ये सियासत कर रहे हैं और इसीलिए जोर बजा रहे हैं। बहरहाल मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ये शाह साहब तो बादशाह बंदे हैं, मैं तो नून लीग का मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। तान्या साहब आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्फन दो टोक ऐलान कर दें कि अगर आपको वजारत दी भी जाएगी तो आपने नहीं कबूल करना। यार गल साडी होण डई है, विच तैनूं की तकलीफ है? हद हो गई है तेरे वाली, तू वखरा ही एवें छोटे मामे वाला किरदार करन लग पिया। कर देना, आप बार बार आपको वजारत करनी पड़ती है, कर दें अब ऐलान। वजारत करनी पैंदी है, नाल नाल गल होण जी रही है, बस छड्ड दे, चुप कर जा। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ मैं टाल टूल लेना, तू ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ। चले सर लिख के दे दें। ओ यार लिख के क्यों दे दिया? तो इंटरव्यू लेना है कि प्लाट लेना है? ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। बहुत शुक्रिया आपका। ਵਜ਼ੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ। बस ये ज्यादा सर्दी होवे ना जी, फिर नहीं वजीर बनदा। एक खमीरा कासबान ते एक वजीर इन्नी सर्दी च नहीं बनदा। सर्दियां गुजरनगियां तो इंशाल्लाह बनेगा, खमीरा भी बनेगा तो वजीर भी बनेगा। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखिए मुझे तो कोई वजारत का शौक नहीं है और ना ही लालच है। हाँ अलबत्ता अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आवाम की खिदमत करने के लिए मुझे वजारत खारजा का कलमदान दें तो वो मैं ले लूंगा। तो फिर वो वजारत ही हुई ना। नहीं जी नहीं, मैं कलमदान की गल कर रहा कलमदान और वजारत एक। हूं। यार वजारत और चीज है, कलमदान और चीज है। वजीर वजीर होंदा ते कलमदान ते पटवारी अगे भी पिया होंदा। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज याद माजी में आप चूंकि सारे बाउ टैप लोग हैं, आपको जो चीज याद कराने लगा हूं आप बहुत मजा लेंगे उसका। ये जो अब सेल्फियां सेल्फियां नहीं हम उतार लेते हो जी कर कुर के मूडिंगे सीधे, और एक सेकंड में हम रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्या आया है। जी जी। ये तस्वीर बनवाना जो है ना जी, जी। ये बकायदा एक वक्त हुआ करता था।
बाकायदा जिस तरह को बंदा बच्चा दाखिल कराने नहीं आजकल स्कूल जाता और तैयारियां पकड़ रहे होते हैं, बच्चे को भी बड़ा रैटी कर रहे होते हाँ जी। हैं, इस तरह चंगे भले सियाने बियाने लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाया करते थे। और बाकायदा सारा दिन में वो प्लानिंग होती थी कि आओ जी आज फोटो खिंचवानी है, अच्छा पासपोर्ट आस्ते या शनाख्ती कार्ड आस्ते या कार लान हाँ, आस्ते। घर लगाने के लिए। और वो जो कैमरा होता था वो तो खैर ये पा जुनैद ने तो शायद हाथों से ही बनाया हो, ये भी कितने बहुत पुराना आदमी है। और आप दोनों भी माशाल्लाह काली टैली के बने हुए हैं, बहुत पुराने। इस बच्ची को मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा डब्बा होता था। बता तुम इस बच्ची को रहे और हैरत का इजहार थैला कर। ओ जैसे वो पहली दफा सुन रहा है कि नहीं? हालांकि थैला जब पैदा हुआ था ना उस वक्त ये टायर जो है ना, ये काले रंग का जो टायर होता है ये चौरस होता था, इसकी आंखों के सामने टायर गोल हुआ वो तो घिस घिस के हुआ है ना। है जी है। तो वो कैमरा जो होता था वो एक इतना बड़ा डब्बा होता था और वो बड़े सारे स्टैंड के ऊपर लगा होता था। अच्छा और उस डब्बे के ऊपर को काला कपड़ा होता था एक मलेशिया का, वो उसने डाला होता था और उस कपड़े के अंदर घुस के ना अंधेरा करने के लिए रोशनी ना लगे तो दीवा एक सेट करते थे, साथ उसका को पता नहीं टर्मिनल या उसका वो हेड होता था कैमरे का, वो दीवे के सामने करके तो फोटो खींचते थे, वाह जी वाह। वायु अंदर उसके कपड़े के डाल के। अच्छा तो ये वो- कुड़ुम की आवाज कैमरे से नहीं, ये मुंह से निकालता था कुड़ुम, है ना? हाँ, फोटोग्राफर को कहना पड़ता था कुड़ुम। और उसमें हंसी वाली चंद चीजें ये हैं कि अक्सर फोटो खिंचवाने के लिए पीछे अपनी मनपसंद फोटो लगवानी होती थी। तो पहाड़ों की तस्वीर, सीनरी या कोई शेर की फोटो या कोई बदल शदल आए हैं वो सीनरी पीछे लटका वो ली। भी पेंटर से बनवाई हुई। अच्छा आम तौर पे ये जो फोटो स्टूडियो होते थे, ये जो रोड साइड पे होते थे, इन्होंने प्रॉप्स अपने साथ रखे होते थे। एक अदद पुराना सा रिवॉल्वर जो काम नहीं करता था, प्लास्टिक रिवॉल्वर ने पिस्तौल पिस्तौल, लकड़ उसकी का। बेल्ट हाँ जी, है हाँ। और या दो नाली बंदूक रखी होती हाँ थी, जी। हार रखा होता था। और बेल्ट में प्लास्टिक की गोलियां भी होती थी। और सर हमारे मुल्तान में वहाँ प्लास्टिक की गोलियां नहीं, वो जो एक गोल रोल में ना स्याही आती थी बचपन में, तो वो डाली होती थी गोलियों की जगह। हाँ जी हाँ जी। और बकायदा फोटो खिंचाने के लिए नहा धो के कपड़े इस्त्री करके कि शायद वाट भी ना बेच आ जाए, और सुरमा शुरमा डाल के तेल लगा के चीर निकालना। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, घर वाले ने कहना कि मैंने जब फोटो खिंचवाई थी ना पहली दफा, तो मैंने थोड़ी सी खुशबू भी लगाई। मैंने समझा शायद फोटो में खुशबू भी आएगी। और घर वाले ने कह के जना लो जीदे रहो तो पीना कर जीदे रहो। मुझसे जो बड़े भाई है ना उजैर, वो हम दोनों भाई तस्वीर खिंचवाने गए तो वो वालदा ने ना ऐसे लट यूं डाल के दी, तो वो सारे रास्ते फोटो स्टूडियो तक यूं गया था। बकायदा मुझे अच्छी उजैर यूं गया था कि खराब ना हो। बल्कि रास्ते में उजैर साहब को कई दोस्तों ने पूछा खैर को सट लग गई? लेकिन नहीं, मैं सलाम अर्ज कर रहे हैं। नहीं ये नहीं थे कहते थे कि यार बहुत टेंशन, आपको क्या बताऊं बहुत टेंशन। अच्छा ये जो यार साहब का मजाक उड़ा रहा है, खुद इसने फोटो खिंचवाने से 3 दिन पहले अपना पजामा इस्त्री करना शुरू कर दिया। सादा पजामा था और इस्त्री फेर फेर के उसको लैनों वाला बना लिया। हालांकि इनको ये नहीं पता था तस्वीर इतनी आनी। हाँ जी। यार इंप्रेशन तो आता था ना पजामे का। और उधर जाके फोटो खिंचवानी। और मजे की बात ये है कि उसके बाद भी जो कैमरा आया है ना रील वाला, हाँ जी। उसमें भी एक बड़ी कबाहत होती थी कि आप फोटो खिंचवाने गए हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर हुई। अब उसमें पहले को 12 तस्वीरें होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रील बढ़ते बढ़ते 36 फोटोओं वाली हो गई। जी जी। अब 36 फोटोओं वाली आप जाके रील में फोटो खिंचवाए हैं, अब जब रील पूरी हो जाएगी फिर आपको भी वो फोटो मिलेगी आपकी। अच्छा। हाँ जी, दिल करे 36 फोटो में 3 हफ्ते ना और आपका इंटरव्यू डेट गुजर गई। नहीं, फिर बंदा तस्वीर खिंचवा के शहर में दूसरे लोगों को कहता था कि यार तुमने तस्वीर नहीं खिंचवानी, इतने प्यारे लग रहे हो, ताकि जल्दी से 36 पूरी हो जाए और मेरी बारी है। हाँ जी जी, पकड़ पकड़ के लाने पड़ते थे बंदे के, भाई जी 36 पूरियां करा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सुनने में ये आया है
बल्कि पढ़ने और देखने में भी यही आया है, टीवी जी। के ऊपर लगे हुए हैं सारे। 40 अरब रुपया जो है ना जी, उसका फ्रॉड किया था ये रईसानी साहब, जो बलोचिस्तान के भाई साहब पकड़े गए थे, और उनसे 2 अरब लेके प्ली बार्गेनिंग के तहत उनको अब छोड़ा जा रहा है। 2 अरब उनसे लिया जा रहा है, और साथ एक 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि ये हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। यानी 40 अरब रुपया किसी से लेना था, और 2 अरब उसमें से लेके इस शख्स ने 400 रुपया मुझसे लेना है। ये मेरा ख्याल है ये बात है कोई 2.5 साल की, चूंकि माशाल्लाह 7 साल से मैं इनके अंडर सुपरविजन यहाँ पे चपड़ासी लगा हुआ हूँ। जी जी। 400 रुपया लेना है, 2.5 साल हो गए हैं। कहता 400 पूरा ही लेना है, जो मर्जी कर लो। चलो यार, फिर ये 500 मेरी रुपया हट दो। दर्मी है कि मैं भी कह रहा हूँ कि जो फिर 400 होएगा फिर उदो देना। प्ली बार्गेन करते हैं, 5 रुपए दे दो, 2 सही को। नहीं इकट्ठे दे यार 40 अरब की जगह 2 अरब दिया जा रहा है। सितम ज़रीफी की इंतहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज डीजी नैब ने की है, और प्ली बार्गेन के फवायद और फजाइल बयान करते हुए डीजी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब प्ली बार्गेन जिन लोगों ने की हुई है ना, उनको आप देखें प्ली बार्गेन के बाद उनकी हालत क्या हो जाती है, वो मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वैसे 2 अरब दे नाल तुसी ओदी धौण तो मुंह ला लिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जिस बेहया ने 40 अरब का फ्रॉड कर लिया, हराम सूर खा लिया, उसको मुंह दिखाते हुए कितनी कुछ शर्म आनी है। इतना किस लिए आप कौम को जज्बाती करके तो अपने नंबर बना रहे हैं। सीधी सीधी बात करेंगे, आपने उसको छोड़ दिया। ये 2 अरब ही उसको पकड़ा दे, जा भाई जिथे वो 38 ले जाएगा उसे 2 भी ले जाए तो 38 माफ। हाँ जी 38 अरब माफ हो गए, और 2 अरब उसको। यार 38 अरब कड़ी कड़ी क्यों कहते हो? 2 पे और 2 अरब रुपया हमने उससे ले। और चेयरमैन नैब का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इसको मंजूर करते हैं या नहीं। बंदा पूछे चेयरमैन नैब साहब से कि आप बाकी जो 38 अरब है वो अपनी जेब से डाल के पूरा करें ना कौमी खजाने में। आपको ये इख्तियार किसने दिया है? कौम का पैसा माफ कर दें। तुम यकीन मानोगे कि 8,000 रुपया मैं तुम्हारी परजाई को देता हूँ। एक दफा, सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ कि उसमें से 500 कट था, और उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक किचन में प्ली बार्गेन करना। हाँ जी प्ली पकड़ के ना तो उसे बाहर लगा के तो गेनिंग करता ना, प्ली बार्गेनिंग। अजीजी ये 38 अरब रुपया अगर कौम का है तो मेरे और थैले के कितने बनते हैं इसमें से? वैसे आप लोगों का टका नहीं बनता, ना को आपके आगे तगड़ा बंदा, ना आपके को पीछे तगड़ा बंदा, ना को आप ब्यूरोक्रेट, ना को आपका सियासत में तलक। खाम का यार उठाओ इसका। आपका सिर्फ उसमें हिस्सा है जो मुल्क पे वाजिबुल अदा कर्जे है ना, वो आप लोगों ने अदा करने। जी जनाब, 80-82 हजार रुपया पाकिस्तान के आप जैसे फी बंदे ने देना है अमेरिका का। कहीं 38 अरब की तरफ ध्यान डाल के गिरफ्तार ना हो जाना। खबर सुनाओ। अच्छा जी सुने, पार्लियामेंट हाउस से 430 चूहे गिरफ्तार। निजी कंपनी को हर गिरफ्तारी पर 900 रुपए इनाम मिलता है। ओहो 38 अरब को मैं भी रो रहे हैं, वो पार्लियामेंट ही सारी चूहों से भरी हुई है। ये मुझे किसने कहा था कि पार्लियामेंट में इस वक्त ज्यादा शेर है? वो तो ज्यादा चूहे निकले हैं। हाँ 430 430 चूहे। हाँ। हाय हाय हाय, हर फी चूहा 900 रुपया ले रहे हैं वो हाँ मारने जी। का। अच्छा 900 रुपए और 900 चूहों का भी कोई ताल्लुक है? नहीं यार, 900 चूहे खा के तो बिल्ली हज को जाती है। ये 900 क्यों रखा है? ये 430 चूहे हैं और फी चूहा 900 रुपया उनको मिल रहा है। बल्कि मेरा ख्याल है चूहों ने अब धरना दे देना है उधर। उन्हें कहना भाई जी ये 900 ਦਾ 900 कंपनी ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 700 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, 200 ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਦੇ ਹੀ ਫੇਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। 900 में फेरा चूहा है या बड़ा इश्तेहार है? और भाई जी जिस तरह चूहों की इनकम शुरू हो गई है, उन्होंने बड़ा इश्तेहार भी पीछे छोड़ जाने। उन्होंने तो मुझे लगता है और कुछ 4-5 फेरियों के बाद कह देने जी साढ़े ते PIA लिखवाओ। PIA केड़ा इतना वटन डई है, बहुते कमांड है। अच्छा जी, शेख रशीद साहब कहते हैं गली गली में शोर, चोर खाए तलोर,
चौधरी निसार के खिलाफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। अल्लाह रहमत करे यार, शेख साहब को फोन मिलाओ जरा, शेख रशीद साहब को पूछो उनकी सेहत तबीयत तो ठीक है ना। वो लड़की कह रही है कि शेख साहब कह रहे हैं मैं तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये तो पहली दफा उनके मुंह से निकला, वरना शेख साहब तो महल्ले में लड़ाई हो तो फौरन एक पार्टी के साथ रल जाते हैं। बल्कि एक दफा पिंडी में शेख रशीद साहब के खिलाफ ही जुलूस निकला हुआ था तो दौड़ के उसको ही लीड करना शुरू हो गए, बकायदा नारे मारने शुरू हो गए, शेख रशीद मुर्दाबाद, शेख रशीद मुर्दाबाद। जब लाल हवेली के बूहे के पहुंचे तो चौकीदार ने कहा कि भाई जी ये तुम्हारे खिलाफ ही नारे वजन डे ने। कहते ले हैं मैं समझे सी मुर्दाबाद के खिलाफ वजन डे। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अगर कतरी शहजादों को तलोर का शिकार कराने से खारजा पॉलिसी बेहतर होती है तो तलोर को वजीर खारजा बना दें। क्यों जी अब बताओ, तुम तो कहते हो कि इमरान खान बड़ा संजीदा आदमी, इससे अच्छी कॉमेडी तो मेरा ख्याल है अमानत चान में नहीं करता। बात तो ठीक है को गल करने वाली। गौरी साहब जरा देखे, कह रहे हैं कि तलौर को वजीर खारजा बना दे। अल्लाह माफ करे, हमारा वजीर खारजा बेचारा अरबी मुल्कों के ऊपर से भी ना गुजर सके। अल्लाह ना करे भूल के गुजर जाए तो इधर खबर आई हो कि कतरी शहजादों ने हमारा वजीर खारजा शिकार कर लिया। और भाई इसके फायदे भी तो देखो ना यार, वजीर खारजा के जितने फिजाई टिकट हैं दौरे होंगे वो बच जाएंगे, उड़ के इधर उड़ के उधर उड़ के दूसरे मुल्क में। तो नुकसानात भी तो देखो ना, फायदे ज्यादा यार। किसी ने टोकरे थले सोटी लगाई हो हमारा वजीर खारजा लालच में आ जाए उधर दाना चुगने चला जाए। पहले दौरे में आगे से घर की मालकन अम्मा लड़ पड़े, एवं तो वजीर खारजा माप टोकरे थले सोटी ला के फड़े आए। चलो हुण दौड़ो, हुण ते वजीर खारजा मेरा ख्याल बोटी बोटी भी नहीं से आया होना। इमरान खान साहब आपको इस तरह का जुगत पानी सूट नहीं करता। अच्छा जी, खबर सुने जरा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बोनेर में कमिश्नर ने ख्वाजा सराओं के नाच गाने पर ये कहकर पाबंदी लगा दी कि इससे उनके इलाके का अमन मुतासिर हो रहा है। ये को बात तो नहीं है न करने वाली। बोनेर का कोसरा के ऊपर पाबंद लगा दिया। ये शर्म नहीं आता इन अफसरों को, पहले शहरों से टांगा निकाला, फिर भैंसे निकाली, अब खुसरा भी निकाल दे। सारा शहर बेरौनक हो जाएगा। जिस शहर के अंदर खुसरा नहीं होता उसका कोई रौनक नहीं होता है। और हमारे नाच गाने पे क्यों पाबंदी लगाई है? क्या सुकून अमन मुतासिर करते हैं हम कौन सा टुमके में से गोली निकालते बहुत बुरी बात। हंसता क्यों है तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आते? इतना सीनियर साहब हो के तो तुम ये क्यों नहीं करता कि दूसरों के पाबंदी हटवाई जाए? इधर बैठ के तुम मर्दों का आवाज उठाते हैं, औरतों के लिए आवाज उठाते हैं, तो कुसरों के लिए क्यों नहीं उठाता आवाज? आज हो गया तुम्हारा। अजीम ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।